Yes, ma'am. Shall we continue? Yes, ma'am. So in the last session, we have already started with the JVM architecture, right? And we have seen how the JVM architecture's two parts work. That is, when the class file goes to as an input to the class loader subsystem, we have seen the how the loading works, linking works, and initialization is done. Then how the data gets stored into different areas like method area, heap area, stack area, and PC registers in the JVM, as well as how the native method stack works. That is also we have completed. All these are inside runtime data area. This is the second part of your JVM architecture. So today we are going to start with the third and most important part of how the program gets executed. That is the execution engine. As the name suggests, here it is an execution engine. That means how your program will be executing and how the memory will be managed. That we are going to start in this and in this session. Okay, so we will quickly revise what type of data we used to store here into runtime data areas. So when we say that it is a method area, we can store the class related data, that is a class variables and class data. Okay, in heap area, so basically this method area stores static blocks, static variables, and its references. Then the heap area, which stores instance variables, which are also nothing but the object data. Okay, this is the class data we are storing into method area. Object related data we are going to store here into the heap area, that is the instance variables. Then the stack memory, that is the stack area where runtime stacks are created, and it always used to store method calls and local variables which we are writing inside a method. Then the PC registers are storing the data and native method stacks. Okay, so this is, we are quickly revised what type of data we are storing into which area. Okay, so maybe in an interview you may get asked related to the difference. आपको ये difference पूछा जा सकता है कि method area में क्या store करते हैं हम, heap area में क्या store करते हैं, और आप अगर ऑब्जेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करनी है तो वो कहाँ पे स्टोर होगी, क्या डिफरेंस है मेथड एरिया में, हिप एरिया में, ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मेमोरी मैनेजमेंट जो जेवीएम करता है पूरे आपके एप्लीकेशन के लिए। कमिंग बैक टू द थर्ड पार्ट, जो जेवीएम का थर्ड पार्ट है, दैट इज एग्जीक्यूशन इंजन। जो बाइट कोड हमें जनरेट करके मिला था, राइट, सो बाइट कोड हमें मिला था, वो बाइट कोड हमने असाइन किया रन टाइम डेटा एरिया को, और वो रन टाइम डेटा एरिया में हमने डेटा, जो भी हमारा डेटा है वो स्टोर किया है। वैसे कहाँ कहाँ पे डेटा स्टोर करना है, कौन से टाइप का डेटा है, वो हमने अभी देखा, राइट। तो अभी एक बार बाइट कोड जनरेट हुआ है, डेटा डेटा एरिया को डेटा स्टोर हो गया, मतलब आपका डेटा स्टोर हो गया है मेमोरी में, तो बाद में उसको एग्जीक्यूट कौन करता है, तो एग्जीक्यूशन करता है एग्जीक्यूशन इंजन। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन इंजन का मेन पर्पस होता है टू एग्जीक्यूट, एक बार एक लाइन बाय लाइन आपका बाइट कोड जो है वो रीड करेगा एंड एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, सो एग्जीक्यूशन इंजन रीड्स द बाइट कोड एंड एग्जीक्यूट्स इट पीस बाय पीस और लाइन बाय लाइन बोल सकते हो आप। कि इसमें सबसे पहला कंपोनेंट है या सबसे पहला पार्ट है इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जीक्यूशन इंजन में। सबसे पहला है इंटरप्रेटर, उसके बाद है जिट कंपाइलर, एंड लास्ट वन इज गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, तो इंटरप्रेटर का क्या काम होता है? इंटरप्रेटर बेसिकली हमने देखा था कि जावा का एक फीचर है दैट ये कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। जावा इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इसमें कंपाइलर भी है, इंटरप्रेटर भी है। तो इंटरप्रेटर का क्या काम क्या होता है? तो जो बाइट कोड हमें मिलता है वो बाइट कोड फास्टर एग्जीक्यूशन के लिए हमें एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, बट ये एग्जीक्यूशन होता है स्लोली। ठीक है, इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करता है बाइट कोड, बाइट कोड में कन्वर्जन फास्टर होता है, बट उसका लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन स्लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका काम होता है कि हर एक लाइन वो रीड करेगा, उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा,
दैट मीन्स मशीन कोड में जो कंप्यूटर को समझ में आता है वैसे कोड में कन्वर्ट करेगा एंड उसको वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो कन्वर्जन फास्ट कर देता है इंटरप्रेटर जो है, वो कन्वर्जन फास्ट कर देता है, बट एग्जीक्यूशन है वो उसका स्लो होता है। ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज है इंटरप्रेटर का, जैसे कि अगर आप एक मेथड लिख रहे हो, सपोज मैंने लिखा एक ऐड मेथड, ठीक है, जो हमने देखा था, एक मैंने लिखा ऐड मेथड, जिस ऐड मेथड में एक मैंने फंक्शन बनाया है, जिस ऐड मेथड को मैंने बहुत बार कॉल किया है, मतलब सेम मेथड, हमने मेथड एक ही बार लिखा, उस मेथड को हमने मल्टीपल टाइम्स कॉल किया है। तो अगर हम मल्टीपल टाइम्स सेम मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, हर बार जो मेथड हमने लिखा है उसका बाइट कोड कन्वर्जन करता है एंड फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। मतलब क्या कि इसमें अगर सपोज मैंने स्टेटमेंट लिखे हैं ए प्लस बी, ये स्टेटमेंट मैंने लिखा है, ठीक है, ए एंड बी आर हियर, तो एक एडिशन का मेथड मैंने लिखा जिसको ए एंड बी पैरामीटर्स आ रहे हैं एंड हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं ए प्लस बी का, एंड इस मेथड को मैंने अलग अलग वैल्यूज देके कॉल किया है। सपोज मैंने पहली कॉल किया है 10 एंड 20 देके, दूसरी बार कॉल किया है जहां पे मैंने वैल्यूज दिए हैं अलग 63 96 दिए हैं। ठीक है, तो जब भी आप इसको अलग अलग वैल्यूज, तो हमें एक्सपेक्टेड क्या होता है कि यहाँ पे जाके ये मेथड क्या करना चाहिए, 10 + 20 का कैलकुलेशन करके हमें आउटपुट दिखाना चाहिए। बट जब आप इंटरप्रेट करते हो तो ये बाइट कोड जो होता है, हर बार जब हम एक ही मेथड को मल्टीपल टाइम्स कॉल करते, अलग अलग उसमें वैल्यूज दे तो भी, या सेम वैल्यूज दे तो भी, तो जितनी बार भी आप इसको कॉल करोगे तो वो हर बार इंटरप्रेटर इस स्टेटमेंट को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, बाइट में कन्वर्ट करेगा एंड हर बार उसका एग्जीक्यूशन होगा लाइन बाय लाइन, जो कि स्लो होगा। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज है इंटरप्रेटर का। क्या डिसएडवांटेज है, द डिसएडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर इज व्हाट, दैट when one method is called multiple times, every time a new interpretation is required। मतलब हर बार जब हम एक ही मेथड को कॉल करते हैं तब इसको हर बार एक इंटरप्रेट करने की जरूरत पड़ती है। ये डिसएडवांटेज हम ओवरकम कर सकते हैं यूजिंग जिट कंपाइलर। ठीक है, जिट कंपाइलर, जिट का लॉन्ग फॉर्म है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ठीक है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, तो ये कंपाइलर है, ठीक है, जो आप यूज कर सकते हो न्यूट्रलाइज करने के लिए इंटरप्रेटर का डिसएडवांटेज। ठीक है, तो एग्जैक्टली जिट कंपाइलर करता क्या है, तो जिट कंपाइलर मेनली हेल्प करेगा इंटरप्रेटर को किसमें, कि ये जो कन्वर्ट कर रहा है हमारा बाइट कोड, उसको अगर सेम जैसे अभी मैंने मल्टीपल टाइम्स एक ही मेथड को कॉल किया, मतलब वो कोड रिपीटेड है, तो हमारे पास अगर रिपीटेड कोड मिलता है तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, डायरेक्टली जिट कंपाइलर को बोलेगा काम कर लो। क्या काम करेगा जिट कंपाइलर फिर, कि ये कंपाइल करेगा पूरा बाइट कोड एंड वो चेंज करेगा नेटिव कोड में। नेटिव कोड मतलब वो हार्डवेयर कोड में कन्वर्ट करेगा, हार्डवेयर कोड में। ठीक है, हार्डवेयर कोड मतलब जो उसी सिर्फ सेम सिस्टम पे काम करेगा। ठीक है, उसके लिए हम इसी को हम बोलते हैं नेटिव कोड। नेटिव, हम जब नेटिव प्लेस बोलते हैं मतलब जहां पे आपका नेटिव प्लेस है, राइट, वैसे ही ये नेटिवली उसी सेम सिस्टम पे वर्क करने के लिए जो जिट कंपाइलर रिपीटेड कोड अगर उसको मिलता है तो उसको वो नेटिव कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, रिपीटेड कोड को कन्वर्ट करेगा नेटिव कोड में। ये काम कौन करता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, दैट इज अ जिट कंपाइलर। एंड जब नेक्स्ट टाइम हम सेम मेथड को कॉल करेंगे, सपोज मैंने फिर से ऐड मेथड को कॉल किया, ठीक है, तो जितने बार फर्स्ट टाइम इंटरप्रिटेशन होगा, जैसे कि यहाँ पे देखा, फर्स्ट टाइम हम इंटरप्रेट करेंगे, पहली बार जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो हार्ड जो कोड है वो इंटरप्रेट होगा, बाइट कोड में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट टाइम अगर हमने फिर से उसी मेथड को कॉल किया, मतलब रिपीटेड कोड है, तो अगर रिपीटेड कॉल्स आ रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ जो हमारा इंटरप्रेटर काम कॉल करता है अगेन इंटरप्रिटेशन करता था, तो उसको हम डायरेक्टली नेटिव कोड को कॉल करेंगे। ठीक है, तो हर बार आपका इंटरप्रिटेशन नहीं होगा, जितने भी बार मल्टीपल टाइम्स हम कॉल करते जाएंगे तो वो डायरेक्टली रिपीटेड कॉल्स अगर है तो वो डायरेक्टली नेटिव कोड से ही कॉल
करेंगे, ठीक है। सो ये काम होता है जिट कंपाइलर का। दिस नेटिव कोड विल बी यूज डायरेक्टली फॉर रिपीटेटिव और रिपीटेड मेथड कॉल्स विच इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। क्योंकि मेन डिसएडवांटेज इंटरप्रेटर का क्या है, बाइट कोड में कन्वर्जन फास्ट करता है, बट उसका एग्जीक्यूशन जो होता है वो बहुत स्लो होता है। तो उसका एग्जीक्यूशन टाइम कम करने के लिए, उसका परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए आपका एप्लीकेशन का, तो जेट कंपाइलर उसमें काम करता है जब भी रिपीटेड कोड उसको मिलता है, ठीक है। नाउ जेट कंपाइलर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है। तो जेट कंपाइलर जो है वो आपके 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो वो 4 पार्ट्स है आपके इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, कोड ऑप्टिमाइजर, टारगेट कोड जनरेटर एंड प्रोफाइलर, ठीक है। तो इन सब का काम क्या है वो हम एक एक देखेंगे। इंटरप्रेटर के बाद जेट कंपाइलर काम करता है, ठीक है। जेट कंपाइलर इंटरप्रेटर के साथ ही काम करता है। जब भी रिपीटेटिव कोड आएगा तो जेट कंपाइलर उसको नेटिव कोड में कन्वर्ट करेगा। तो उसमें आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर ये क्या करता है, आपको प्रोड्यूस करके देगा इंटरमीडिएट कोड, मतलब जो नेटिव कोड है, जो उसी सेम प्लेटफॉर्म पे वर्क करेगा, उसको इंटरमीडिएट कोड हम यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। उसमें वो कन्वर्ट करेगा, मतलब आपका जो भी वाइट कोड है उसको प्रोड्यूस करेगा इंटरमीडिएट कोड में। कोड ऑप्टिमाइजर रेस्पॉन्सिबल होता है इंटरमीडिएट कोड जो जनरेट हुआ है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, मतलब उसका परफॉर्मेंस बढ़ना चाहिए। देन थर्ड है आपका टारगेट कोड जनरेटर, जो आपके मशीन कोड में कन्वर्जन करने के लिए, और उसको हम नेटिव कोड भी बोलते हैं। ये एक्चुअली टारगेट कोड जनरेटर मशीन कोड कन्वर्जन करता है आपके बाइट कोड का, मतलब एग्जीक्यूशन सेम सिस्टम के ऊपर उस प्रोग्राम को, उस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी करता है, ठीक है। ये टारगेट कोड जनरेटर का काम है, जो मशीन कोड को या फिर नेटिव कोड को जनरेट करेगा। लास्ट इज फोर्थ पार्ट प्रोफाइलर। ये बहुत ही स्पेशल कंपोनेंट है। ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल है अगर उसमें कुछ हॉटस्पॉट वगैरह है आपके एप्लीकेशन में, आपके नेटिव कोड में, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम प्रोफाइलर का यूज करते हैं। जैसे कि एक ही मेथड जो है वो मल्टीपल टाइम्स कॉल हो रहा है, इस टाइप के कॉल प्रोग्राम में आपके अगर रहेगा, तो उसको आइडेंटिफाई कौन करता है, तो प्रोफाइलर करता है। प्रोफाइलर पहले काम करेगा, आपका आइडेंटिफाई करेगा कोड, एंड उसके बाद ही सबके आपके एप्लीकेशन में जो भी जितने भी पार्ट्स है वो वर्क करेंगे जिट कंपाइलर के, ठीक है। क्योंकि अगर रिपीटेड कोड नहीं है तो वो कोड आपका जिट कंपाइलर नेटिव कोड में कन्वर्ट नहीं करता है, ठीक है। अगर रिपीटेड कॉल नहीं है, रिपीटेड कोड नहीं है, तो वो कन्वर्ट नहीं करेगा, इंटरप्रेट करके छोड़ देगा। अगर रिपीटेड कोड है तो ही आपका जिट कंपाइलर काम करता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, जावा सोर्स कोड है जो डॉट जावा फाइल है। कंपाइलर पहले डॉट क्लास फाइल क्रिएट करता है जिसको हम बाइट कोड बोलते हैं, ठीक है। बाइट कोड उसको हम मेटा डेटा भी बोलते हैं। तो ये बाइट कोड जो है, ये बाइट कोड हम जिट कंपाइलर को एज अ इनपुट देंगे, जहां पे रिपीटेड कोड जो होगा वो आइडेंटिफाई किया जाएगा प्रोफाइलर के थ्रू। फर्स्ट टाइम आपका जिट कंपाइलर, फर्स्ट टाइम अगर मेथड कॉल हो रही है तो जिट कंपाइलर उसको एज इट इज एग्जीक्यूट करेगा। अगर मल्टीपल टाइम सेम मेथड कॉल्स आपको दिख रहे हैं, सेम कोड दिख रहा है, रिपीटेड कोड दिख रहा है, तो जिट कंपाइलर उसको नेटिव कोड में कन्वर्ट करेगा। नेटिव कोड मतलब कि वो कैशे मेमोरी में स्टोर होता है, जहां पे वो टेम्पररी मेमोरी हम बोलते हैं, ठीक है। सो कैशे मेमोरी में इसको स्टोर किया जाता है। ये सब कुछ रन टाइम पे होता है एंड ये कंपाइल टाइम पे होता है। अभी कंपाइलर का काम क्या है वो हम बाद में देखने वाले हैं डिटेल में, अभी इंटरप्रेटर का काम हमने देखा, ठीक है। सो जिट कंपाइलर इस तरीके से वर्क करता है। जिट कंपाइलेशन ऑकर्स द फर्स्ट टाइम अ मेथड इज कॉल्ड एंड ओनली इफ इट्स कॉल्ड रिपीटेडली, ठीक है। अगर मल्टीपल टाइम्स हम सेम मेथड को रिपीटेड कॉल कर रहे हैं तो जिट कंपाइलर उसको रन टाइम में नेटिव कोड में कन्वर्ट करके रखता है। सो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन इंजन, दैट इज जस्ट इन टाइम कंपाइलर, ठीक है। थर्ड पार्ट इन एग्जीक्यूशन इंजन इज गार्बेज कलेक्टर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप कोई
डेटा स्टोर करते हो, मतलब अगर जो भी हम वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करते हैं, वैल्यूज देते हैं उसको, सपोज हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको वैल्यू दी 10, बट इसको यूज ही नहीं किया है, अगर यूज ही नहीं कर रहे हैं क्यों, और बाद में अगर हम इसको रेफर ही नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो वेस्ट होता है, राइट। एज अ प्रोग्रामर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप कम से कम मेमोरी यूज करो, ठीक है। आपका प्रोग्राम इफिशियंट होना चाहिए, मेमोरी उसमें वेस्ट होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो सी एंड सी प्लस प्लस में हमें मेमोरी डी अलोकेशन बोलते हैं हम उसको, डी अलोकेशन खुद से करना पड़ता था, इट वॉज मैन्युअल, इट वॉज मैन्युअल इन सी और सी प्लस प्लस। बट जावा में एक फीचर है जो ये मेमोरी डीअलोकेशन ऑटोमेटिकली होता है, जिसको हम गार्बेज कलेक्शन बोलते हैं। और वो गार्बेज कलेक्शन करता कौन है, तो गार्बेज कलेक्टर करता, ठीक है। सो इट कलेक्ट्स एंड रिमूव्स अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट्स, जो भी अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उसको वो कलेक्ट करेगा, रिमूव करेगा, उसकी मेमोरी फ्री करेगा, उसके लिए जो मेमोरी यूज हुई थी उसको फ्री कर देगा, ये ऑटोमेटिक होता है। सो गार्बेज कलेक्शन कैन बी ट्रिगर्ड। अगर आपको खुद से मैन्युअली करना है तो आप system.gc कॉल करके कर सकते हो, बट इसका एग्जीक्यूशन गारंटेड नहीं है, क्योंकि गार्बेज कलेक्शन जेवीएम ऑटोमेटिकली करता है, एंड ये जेवीएम खुद से कर देगा, आपकी मेमोरी को फ्री कर देगा, ठीक है। आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, बट देर इज अ मेथड जो आप यूज कर सकते हो, system.gc करके मेथड है, इसको आप यूज कर सकते हो अगर आपको खुद से करना है। बट हम गारंटी नहीं दे सकते कि ये होता ही है या नहीं, क्योंकि इसको जेवीएम करता है, ठीक है। नाउ गार्बेज कलेक्शन का मोस्ट, इसको एग्जैक्टली exactly अगर वर्ड्स में बताओ तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स जो हमें यूज में नहीं है, जिसको हमने बहुत टाइम से यूज नहीं किया है बट उसके लिए मेमोरी अलोकेट हो गई है, उस ऑब्जेक्ट्स को अनरेफरेंस्ड है, अनरेफर्ड है, तो वो डिलीट हो जाएंगे, उसकी मेमोरी जो है उसकी मेमोरी फ्री की जाएगी ऑटोमेटिकली। ये प्रोसेस, इस प्रोसीजर को हम गार्बेज कलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। गार्बेज कलेक्टर ये गार्बेज कलेक्शन करता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल, गार्बेज कलेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग गार्बेज, ठीक है। आप गार्बेज कलेक्टर फाइनलाइज मेथड को कॉल कर सकते हो बिफोर गार्बेज कलेक्शन, मतलब अगर आपको कोई जैसे कि डेटाबेस होता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बट वो आपको समझ में नहीं आएगा। डेटाबेस रहता है, डेटाबेस के साथ हम कनेक्शन करते हैं, ठीक है। डेटाबेस कनेक्शन होते हैं, अगर आपने रेफर नहीं किया है तो गार्बेज कलेक्शन क्या कर देगा, इस डेटाबेस कनेक्शन को डायरेक्टली फ्री कर देगा, ठीक है। मेमोरी इसके लिए जो भी अलोकेट हुई है उसको फ्री कर देगा। बट फ्री मेमोरी करने से पहले मुझे जो कनेक्शन हमने किया था उसको क्लोज करना है, ठीक है। कनेक्शन को क्लोज करना है, मतलब जो भी मैंने ऑब्जेक्ट्स हेल्ड किए थे, उस ऑब्जेक्ट्स के लिए जो रिसोर्सेस मैंने यूज किए थे, कनेक्शन रिसोर्स मैंने यूज किया था, तो उसको मुझे पहले फ्री करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये गार्बेज कलेक्शन मेमोरी जो एलोकेटेड हुई है उसको फ्री होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर रिलीज करने हैं रिसोर्सेस हेल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिफोर द ऑब्जेक्ट बीइंग गार्बेज कलेक्टेड, तो हम यूज करते हैं फाइनलाइज मेथड, ठीक है। ये फाइनलाइज मेथड आप लिख सकते हो इन योर प्रोग्राम, कहीं पे भी आप लिख लो। तो उसका सिंटैक्स रहता है प्रोटेक्टेड वॉइड फाइनलाइज, एंड जो भी आपको रिसोर्स रिलीजिंग कोड लिखना है वो आप इसके अंदर लिख सकते हो। तो ये काम कैसे करता है, जब भी गार्बेज कलेक्शन होगा उससे पहले ये कोड, इसमें जो आपने लिखा है वो कोड कंपलसरी एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। सो रिलीज रिसोर्स करने के लिए हम फाइनलाइज मेथड का यूज करते हैं। क्लियर, एनी डाउट, अंडरस्टूड यस मैम। एग्जीक्यूशन इंजन? ओके। The next two parts of your JVM architecture is Java native interface and Java native method libraries. Okay. So native, where the word native comes, that means it is totally based on हार्डवेयर, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, ठीक है। जहां पे भी नेटिव वर्ड आता है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है।
तो ये इंटरफेसेस, नेटिव इंटरफेस क्या है, जो भी आपके बेसिकली ये आपको कुछ इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है, लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है। क्या लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है? जो भी आपके स्पेसिफिक हार्डवेयर के ऊपर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाहिए, आपका एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो वो इंटरैक्ट कैसे करेगा, उसके लिए जो लाइब्रेरीज लगते हैं वो आपको जावा नेटिव इंटरफेस में प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। जैसे क्योंकि हम जब भी जेडीके डाउनलोड करते हैं तो वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, राइट। तो उसी के साथ ये भी आपको मिलेंगे, उसका जेवीएम का स्ट्रक्चर में ये जेएनआई इंटरफेसेस में वो इंटरफेस लाइब्रेरीज रहेंगे जो मैक पे काम करेंगे, विंडोज पे काम करेंगे, ऐसे अलग अलग रहेंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जीक्यूशन इंजन वर्क करेगा, आपका एग्जीक्यूट करेगा आपके प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्जन के लिए। इसको यूज करता है इंटरफेसेस को, लाइब्रेरीज को, जो भी स्पेसिफिकली हार्डवेयर रिलेटेड रहेंगे। एज वेल एज ये इंटरफेसेस कुछ मेथड लाइब्रेरीज भी यूज करता है जिसमें नेटिव मेथड्स लिखे जाते हैं, मतलब हार्डवेयर रिलेटेड मेथड्स रहेंगे। जैसे कि मैक पे अगर कोई कोड एग्जीक्यूशन करना है तो उसके लिए जो मेथड है वो मेथड उसी पे लिखा जाएगा। वो लाइब्रेरीज रहेंगे नेटिव मेथड के, सिर्फ और सिर्फ उसी मैक पे ही वर्क करेंगे। विंडोज प्लेटफॉर्म पे वर्क करने के लिए जो मेथड्स लिखे जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ उसी पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये लाइब्रेरीज आपको प्रोवाइड की जाती है जो रिक्वायर होती है एग्जीक्यूशन इंजन को। तो ये दोनों का यूज उसी के लिए होता है, एग्जीक्यूशन इंजन के साथ आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। एग्जीक्यूशन इंजन जो काम करता है आपका बाइट कोड टू मशीन कोड कन्वर्जन का, मतलब आपका एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का, एप्लीकेशन का जो होता है थ्रू एग्जीक्यूशन इंजन होता है। तो एग्जीक्यूशन इंजन का मेन पार्ट रहेगा यहाँ पे जेवीएम में। अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर हम अलग अलग जेवीएम इंस्टॉल करते हैं, तो प्लेटफॉर्म के डिपेंडेंट, मतलब हार्डवेयर डिपेंडेंट जो भी इंटरफेसेस, मेथड लाइब्रेरीज जो भी रहेंगे वो इन दोनों में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। क्लियर विद दिस? एनी डाउट? विद दिस योर जेवीएम आर्किटेक्चर इज कंप्लीटेड। जेवीएम आर्किटेक्चर में कुछ डाउट है तो पूछ लो। नो मैम। ओके, सो नाउ वी विल सी हाउ द योर जावा कोड एग्जीक्यूशन विल बी डन, ठीक है। एग्जीक्यूशन कैसे होता है जावा प्रोग्राम का? तो सबसे पहले, जैसे मैंने बोला, हम सबसे पहले प्रोग्राम जो है वो लिखते हैं। आपका प्रोग्राम जो है वो लिखा जाएगा डॉट जावा फाइल में। इसका एक्सटेंशन है डॉट जावा, ठीक है। ये तो हमने ऑलरेडी देखा है कि जावा किस कंसेप्ट पे डेवलप किया गया है, वो रहा कंसेप्ट पे, दैट इज राइट वंस रन एनीवेयर। बट ये रन कहाँ पे होता है? विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल मशीन। कौन सा वर्चुअल मशीन? जावा वर्चुअल मशीन पे ही इसको एग्जीक्यूट हम करते हैं, ठीक है। अगर आपके सिस्टम में वर्चुअल मशीन नहीं है, मतलब जेवीएम नहीं है, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन या एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन के लिए आपको वर्चुअल मशीन लगता ही है आपके सिस्टम पे, ठीक है। तो जो जावा सोर्स फाइल है डॉट जावा, जिसका एक्सटेंशन हम देते हैं, उसके साथ एक जावा कंपाइलर आता है। जावा कंपाइलर कंपोनेंट इज देयर इन दी जेडीके बिन फोल्डर, ठीक है। जेडीके जो आपने इंस्टॉल किया है उसमें जावा कंपाइलर रहता है जिसका नेम रहेगा जावा सी। आई विल ट्राई टू शो इट। मैं एक बार ट्राई करती हूँ। वन सेकेंड। आपका इंस्टॉलेशन जनरली सी ड्राइव, अगर आपके इसमें है तो सी ड्राइव में जावा करके प्रोग्राम फाइल्स वगैरह में जावा करके फोल्डर क्रिएट, उस जावा फोल्ड प्रोग्राम फाइल्स के फोल्डर में, जावा फोल्डर में जाके आप चेक कर सकते हो आपका इंस्टॉलेशन, आपने इंस्टॉलेशन किया है या नहीं। ठीक, तो ये आपका रहता है जेडीके का इंस्टॉलेशन, ठीक है। जेडीके के इंस्टॉलेशन में आप जाओगे बिन फोल्डर में, ये कुछ फाइल्स रहेंगे, इसी में आपको जावा सी करके कमांड दिखेगी। दिस इज अ जावा सी डॉट ई एक्स फाइल।
ये होता है आपका कंपाइलर, जावा कंपाइलर। ठीक है, ये जावा कंपाइलर है जो कंपाइलेशन, प्रोग्राम को कंपाइलेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सो जो आप डॉट जावा फाइल लिखते हो, वो डॉट जावा फाइल आप इसमें भी लिख सकते हो, इस बिन फोल्डर में। हाँ, अगर आप जावा फाइल इस बिन फोल्डर के थ्रू एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने की जरूरत होती है, अदरवाइज इक्लिप्स के थ्रू हमें नहीं होती है। तो इस बिन फोल्डर में पाथ आप देख सकते हो, प्रोग्राम फाइल्स में जावा फोल्डर है, जावा में जेडीके फोल्डर है। ठीक है, इसमें बिन फोल्डर है। बिन में आपको सब कुछ दिया जाता है जो हमें लगता है, दैट इज टूल्स, डेवलपमेंट टूल्स, एग्जीक्यूशन टूल्स यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हमने डॉट जावा फाइल सोर्स फाइल लिखी, तो जो जावा कंपाइलर है, दैट इज जावा सी, क्या करता है, जावा सी कंपाइलर जो है इस सोर्स फाइल को कन्वर्ट करता है डॉट क्लास फाइल में, दैट इज बाइट कोड में। ठीक है, जिसका एक्सटेंशन डॉट क्लास रहता है। नेम ऑफ दीज टू फाइल्स विल बी सेम, इन दोनों का फाइल नेम सेम रहता है। ठीक है, तो जावा बाइट कोड कन्वर्ट हुआ, इसको हम बोलते हैं बाइट कोड, जो आपका इंटरमीडिएट कोड है। ठीक है, जो डॉट क्लास फाइल में दिखता है। द कंपाइलर कंपाइल्स द जावा फाइल इनटू अ जावा डॉट क्लास फाइल। ठीक है, एंड उसके बाद ये जो बाइट कोड कन्वर्जन हुआ है, ये आपका अलग अलग स्टेजेस में इनपुट दिया जाता है जेवीएम में। और जेवीएम के हमने स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर में ऑलरेडी देखा कि ये डॉट क्लास फाइल किन स्टेजेस से गुजरता है, कैसे कैसे क्या काम करता है। क्लास लोड कर लेता है, इस क्लास लोडर के बाद आपको मेमोरी एलोकेशन होता है रन टाइम डेटा एरियाज में। मेमोरी एलोकेशन होने के बाद आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, मशीन कोड कन्वर्जन होता है एग्जीक्यूशन इंजन में, एंड आपका प्रोग्राम जो है, एप्लीकेशन जो है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, सो विच लोड्स एंड एग्जीक्यूट्स द क्लास फाइल। ठीक है, तो ये होता है आपका बाइट कोड। इस बाइट कोड के बाद जो आपके से ये कन्वर्जन होते हैं फाइल्स का, उसको हम मशीन कोड बोलते हैं। ओके, सो मेन हमें यहाँ पे देखना है कि इसमें कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, एंड डिबगर क्या है। तो कंपाइलर तो हमने देखा, यहाँ पे जावा सी करके कंपाइलर है। ठीक है, जावा सी इज कंपाइलर, जावा इज योर इंटरप्रेटर। ये जो जावा डॉट ई दिख रहा है वो आपका इंटरप्रेटर है। ओके, जावा सी कंपाइलर है, जावा जो है वो इंटरप्रेटर है, और उसके बाद जेडीबी जो है ये डिबगर है। ठीक है, ऐसे ही बाकी सारे भी बहुत सारे हैं, कंसोल है, जेएफआर है, जावा पी है, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, बट अभी उनके लिए हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कंपाइलर, इंटरप्रेटर और डिबगर की जरूरत होती है मोस्टली कोई भी एप्लीकेशन में। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करेगा, पूरे प्रोग्राम को स्कैन करेगा। पूरे प्रोग्राम को स्कैन करने के बाद उस प्रोग्राम में, जो प्रोग्राम है उसको पहले सिंटैक्टिकल एरर्स के लिए चेक करेगा कि उसमें सिंटैक्टिकल एरर्स है या नहीं है। प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा, एक साथ ही होल प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा मशीन कोड में एट वंस। ठीक है, एक बार ये क्लास फाइल एक बार कन्वर्ट होती है, कंपाइलर एक ही बार इसको होल प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे हम जावा सी कमांड यूज करते हैं टू कंपाइल द प्रोग्राम। सेकेंड इज इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, आपका जो पूरे प्रोग्राम है उसको ट्रांसलेट करेगा, बट वन स्टेटमेंट एट अ टाइम, मतलब लाइन बाय लाइन आपके प्रोग्राम का जो बाइट कोड है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। लाइन बाय लाइन कन्वर्जन एंड एग्जीक्यूशन विल बी डन बाय द इंटरप्रेटर। यहाँ पे हम जावा कमांड का यूज करते हैं टू इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। एक स्टेटमेंट करता है ये कन्वर्ट। ठीक है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ करेगा, इंटरप्रेटर एक एक स्टेटमेंट को लेके एक एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है। इसकी वजह से इसको टाइम लगता है कन्वर्जन में। लास्ट वन इज डिबगर। जो प्रोग्राम में हमारे अगर कुछ एप्लीकेशन में बग्स है, कुछ एरर्स है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से लाइन पे है, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कोड में कहाँ पे बग्स आए हैं, इसके लिए हमें डिबगर लगता है। ठीक है, इट इज यूज टू टेस्ट एंड डिबग द टारगेट प्रोग्राम्स। तो डिबग करना मतलब हमें कुछ कोड में, कोई एप्लीकेशन में कुछ गलत नहीं हो रहा है ना, बग्स जिसको हम बोलते हैं
बग्स आइडेंटिफाई करने हैं एंड उसको ठीक करना है, इसको हम डिबगर बोलते हैं। ठीक है, डिबगर का काम होता है ये। तो यहाँ पे JDB करके कमांड दिया है जावा में, जिसको हम यूज कर सकते हैं डिबग के लिए। तो ये जावा सी, जावा, JDB, ये जो कमांड्स है ये कमांड लाइन कमांड्स है। ठीक है, मतलब अगर आप वो कमांड लाइन पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो, कंपाइल कर रहे हो, तो ही हम इसको यूज करेंगे। हम डायरेक्टली इक्लिप्स में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करने वाले हैं, तो वो कमांड्स इक्लिप्स में बाय डिफॉल्ट लिखे गए हैं, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है, बट यू मस्ट नो दीज थिंग्स। ठीक है, कौन से कमांड्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप कभी कमांड लाइन पे काम करोगे, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करोगे, तो सबसे पहले आपको कंपाइल करना होता है, फिर इंटरप्रेट करना होता है, इंटरप्रेट के साथ ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, डिबग अगर करना है तो JDB कमांड का आप यूज कर सकते हो। कि ये सारे कमांड्स कमांड लाइन पे एग्जीक्यूशन के लिए है। इक्लिप्स में ये सारे कमांड्स ऑलरेडी लिखे गए हैं, आपको खुद से लिखने की जरूरत नहीं है। सो द सेम समराइज हम करेंगे यहाँ पे। दैट इज सोर्स कोड विल बी कन्वर्ट, कंपाइलर अगर है तो वो एक ही साथ मशीन कोड में कन्वर्ट करता है एंड आपको आउटपुट देता है। इंटरप्रेटर अगर है तो सोर्स कोड इंटरप्रेट करता है लाइन बाय लाइन, एंड एग्जीक्यूशन भी लाइन बाय लाइन होता है, आपको डायरेक्टली आउटपुट भी मिलता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट मॉड्यूल 1। हम यहाँ पे मॉड्यूल 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आपको फाइल शेयर की जाएगी, मॉड्यूल 1 की PDF फाइल, एंड मॉड्यूल 1 का एक असाइनमेंट भी आपको अपलोड किया जाएगा, आपके डैशबोर्ड पे आपको दिखेगा। ठीक है, तो उसकी डेट रहेगी 1 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर तक, आपको उसको कंप्लीट करना है एंड अपलोड करना है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट मॉड्यूल 1। ओके, आई थिंक Piyush left. So Shweta, this is your second session, right? In the last session you just joined. So can you give a little bit of your introduction? Are you there? Give your introduction. Hello, ma'am. Yes, Hello. yes, you're audible. Yes, ma'am. My name is Shweta Samam. I am from Solapur and I am pursuing BTech degree from SSW COE, Solapur. And I am in final year. Sorry, I didn't get your last introductory I part. am in final year CSE. Final year BSc, CSE, CSE. CSE. Okay. So you are studying in Solapur itself. Yes, yes. Okay. So do you have any knowledge about programming languages as you are in CSE? तो आपको कुछ नॉलेज होगा आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। Yes, ma'am. ओके, सो कौन से लैंग्वेजेस आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, बता सकते हो? Java, Python, and C. ओके, यू हैव नॉलेज ऑफ जावा एज वेल। ठीक है, सो नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो यू हैव जॉइंड इन द लास्ट सेशन, सो डू यू हैव एनी डाउट? आपको कुछ डाउट है? ओके, ओके, नो इशू। सो we have already completed the module 1, that is the Java fundamentals. Okay, जहाँ पे हमने ऑलरेडी पढ़ा सारे जावा के फीचर्स, जावा क्यों इन्वेंट हुआ था, देन JVM का आर्किटेक्चर, उसमें क्या क्या पार्ट आते हैं, कंपाइलर इंटरप्रेटर का क्या काम होता है, ये सब बेसिक पार्ट हमने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड मॉड्यूल, जहाँ पे हम जावा फंडामेंटल्स सीखेंगे। दैट इज नथिंग बट हाउ टू राइट अ जावा प्रोग्राम, उसका बेसिक सिंटैक्स स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, प्रोग्राम लिखने के लिए डेटा टाइप्स क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके कुछ रूल्स है वो क्या होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस मॉड्यूल 2। सो वी आर स्टार्टिंग विद द मॉड्यूल 2, दैट इज जावा फंडामेंटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले जावा का प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखते हैं कि जावा प्रोग्राम में स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे पहले होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, उसके बाद होता है पैकेज स्टेटमेंट, उसके बाद होता है इंपोर्ट स्टेटमेंट, देन इंटरफेस स्टेटमेंट्स,
ठीक है, क्लास डेफिनेशंस, मेन मेथड क्लास एंड मेन मेथड डेफिनेशन। ठीक है, ये सिंटैक्स है, ये स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का, इसमें से कुछ भी आप स्किप कर सकते हो, इट इज नॉट कंपल्सरी स्ट्रक्चर। मतलब ये कंपल्सरी ऐसे ही लिखना है ऐसे नहीं है, उसका सिर्फ प्लेस इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लिखना है, डॉक्यूमेंटेशन लिखना है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या होता है बेसिकली, तो अगर आपको प्रोग्राम रिलेटेड कुछ भी एक्सप्लेनेशन देना है, कुछ भी लिखना है, लाइक जैसे कि ये प्रोग्राम क्या किसके लिए लिखा गया है, आपने किस पर्पज के लिए लिखा है, तो वो आप डॉक्यूमेंटेशन में लिख सकते हो। अगर डॉक्यूमेंटेशन में हमें प्रोग्राम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखनी है तो हमें कमेंट्स लगते हैं। तो कमेंट्स हम दे सकते हैं टू वेज में, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, सेकंड होता है मल्टी लाइन कमेंट। सो सिंगल लाइन कमेंट जावा में फॉरवर्ड स्लैश के थ्रू हम यूज करते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश हमें यूज करना होता है तो हम सिंगल लाइन कमेंट लिखते हैं। मल्टी लाइन कमेंट के लिए हमें फॉरवर्ड स्लैश स्टार, नो स्पेसेस इन बिटवीन, ठीक है, इसमें कुछ भी स्पेस नहीं देना है, ये एक साथ ही स्टेटमेंट आना चाहिए। जो भी स्टेटमेंट आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो, एंड उसको एंड करना है स्टार एंड अगेन फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, सो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में लिखना है या कोई भी प्रोग्राम में आपको कभी भी कमेंट्स लिखने हैं, कुछ भी इंफॉर्मेटिव लिखना है तो हम कमेंट्स लिखते हैं, जो कि पार्ट प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता है, एग्जीक्यूशन उसमें नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए लिखा जाता है, उसको हम कमेंट बोलते हैं। अगर कभी आपको प्रोग्राम में पैकेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखनी है या फिर आपका प्रोग्राम कहाँ पे पैकेज में लिखना है, तो वो पैकेज स्टेटमेंट के यहाँ पे आएगा। तो ये जो प्लेसेस डिफाइंड है, ठीक है, तो इसमें हम कंपलसरी सभी लिखने हैं ऐसे नहीं है, बट जब भी आपको लिखना है तब आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद पैकेज, उसके बाद इंपोर्ट, इंटरफेस, क्लास, मेन मेथड क्लास एंड मेन मेथड डेफिनेशन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया आपके जावा प्रोग्राम का। तो एक हम सिंपल प्रोग्राम करेंगे। हैव यू इंस्टॉल्ड जेडीके एंड इक्लिप्स ऑन योर सिस्टम? आपके सिस्टम पे इक्लिप्स जेडीके वगैरह है ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ? Yes, ma'am. ओके, अगर है तो नो इशू, नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो वी आर गोइंग टू डू दिस सिंपल फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जावा, जहाँ पे हेलो वर्ल्ड डॉट जावा फाइल हम क्रिएट करेंगे, कमेंट लिखेंगे, फाइल कैसे क्रिएट करनी है, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है इक्लिप्स में, वो सब कुछ देखेंगे। मेन मेथड कैसे लिखनी है, मेन मेथड को हम ब्लॉक क्यों बोलते हैं वो भी यहाँ पे देखेंगे। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ जावा प्रोग्राम। ठीक है, ये जावा प्रोग्राम का सिंटैक्स है जिसको हम यूज करने वाले हैं आपके प्रोग्राम में। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जो आपका वर्क स्पेस रहेगा, उस वर्क स्पेस में न्यू करने के बाद आपको जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। आई एम गिविंग अ नेम टू इट। ठीक है, ये मैंने नाम दिया है प्रोजेक्ट का। इसका डिफॉल्ट लोकेशन जहां पे भी आपने वर्क स्पेस क्रिएट किया होगा वहां पे ये प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट होगा। आपको आपने जो डिफॉल्ट जेडीके इंस्टॉल किया है वही यहाँ पे सिलेक्ट होगा, कि बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट कर लो एंड फिनिश कर लो। ठीक है, तो आपका ये प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ जिसमें एसआरसी फोल्डर दिख रहा है। सो एसआरसी मीन्स जो भी सोर्स फाइल्स रहेंगे आपको इसमें लिखने हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, तो हमें क्लास क्रिएट करना पड़ता है। सो सिलेक्ट द क्लास, क्लास को नेम देना है।
नेम देने के लिए कुछ रूल्स है, वो रूल्स भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले पहला रूल है कि आपका क्लास नेम कैपिटल केस से स्टार्ट होना चाहिए या फिर कुछ स्पेसिफिक स्पेशल कैरेक्टर से उससे ही स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट एग्जांपल है तो हम दे रहे हैं नेम हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। डॉट जावा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हेलो वर्ल्ड आप लिखोगे, नेम दोगे, ठीक है। पैकेज यहाँ पे डिफॉल्ट पैकेज है, मतलब एसआरसी फोल्डर में ही आपका फाइल क्रिएट होगा। इसमें हमें मेन मेथड लगने वाला है तो आप इसको टिक कर सकते हो एंड फिनिश कर सकते हो। तो ये सिंटैक्स और इस सिंटैक्स को हम कंपेयर करेंगे। तो फाइल नेम है हमारा हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, ठीक है, ये नाम नेम है जावा फाइल का। क्लास का नेम है हेलो वर्ल्ड, नेम ऑफ द जावा क्लास। कभी भी जो क्लास हम पब्लिक क्लास क्रिएट करते हैं, दिस पब्लिक क्लास नेम शुड बी गिवन टू द जावा फाइल, ठीक है। पब्लिक क्लास का ही नाम हम जावा फाइल को देते हैं, तो फाइल नेम क्लास नेम शुड बी सेम। बट कौन से क्लास का, कोई भी क्लास नहीं, तो पब्लिक क्लास होगा तो उसका नेम आपको देना है, ठीक है। जो मेन मेथड के साथ अगर रहेगा तो वो मेन मेथड के क्लास का ही नेम आपको देना है। अगर मेन मेथड नहीं है तो भी जो क्लास पब्लिक क्लास है उसी का नाम आपको फाइल को देना है, ठीक है। दिस शुड बी सेम। तो क्लास नेम हमने लिखा, मेन मेथड का ये सिंटैक्स है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इन सारे स्टेटमेंट्स का हम मतलब क्या होता है वो देखेंगे, ये सारे कीवर्ड्स है। मेन मेथड नेम है इसका मेन, जिसमें पैरामीटर आता है स्ट्रिंग एरे आर्ग्स करके। एंड जो कर्ली ब्रेसेस है, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको कोड लिखना होता है, दैट इज नोन एज मेन मेथड ब्लॉक, जिसमें आपको कोड लिखना होता है। तो जब भी आप मेन मेथड के अंदर जो भी कोड लिखोगे वही जेवीएम मेन मेथड को कॉल करके एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो इसको हम सेम तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो लिखा है ये कमेंट है, ठीक है, तो इसको मैं हटा के ये यहाँ पे लिखती हूँ, दिस इज अ कमेंट, ठीक है। सेम जो हमने सेक्शंस देखे हैं उस सेक्शंस को अगर मुझे करना है तो मैं इस तरीके से कर सकती हूँ। डॉक्यूमेंटेशन, पहला डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद आपका पैकेज स्टेटमेंट होगा, उसके बाद आपका रहता है इंपोर्ट स्टेटमेंट, उसके बाद रहेगा आपका इंटरफेस स्टेटमेंट अगर कोई है तो, उसके बाद क्लास, एंड ये मेन क्लास है। मेन क्लास डेफिनेशन, ठीक है, विथ मेन मेथड, तो इसमें मेन मेथड है ये, ठीक है। ये सिंगल लाइन कमेंट है, अगर मल्टी लाइन कमेंट देना है तो इस तरीके से आप दे सकते हो, स्टार यूज करना है, दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। नाउ इसमें हम एक ही स्टेटमेंट लिखेंगे जो मुझे कंसोल पे आउटपुट दिखना चाहिए, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ये क्या क्या है, सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंटलन क्या है, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं बाद में। सिर्फ अभी आपको जो भी कुछ आउटपुट दिखाना है स्क्रीन के ऊपर वो आपको हमेशा दिखाना होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू। प्रिंट और प्रिंटलन दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो इसमें इन ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स में जो भी आप स्टेटमेंट लिखोगे वो आपको दिखेगा कंसोल पे आउटपुट करके, ठीक है। तो दिस इज आउटपुट, दिस इज आउटपुट हेलो वर्ल्ड, मैंने वही सेम स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है। नाउ वी विल एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। तो एग्जीक्यूशन के लिए अगर ये सेम प्रोग्राम हम लिखते हैं डॉट बिन फोल्डर में तो आपको सबसे पहले इसको कंपाइल करना होता है, फिर आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते थे इंटरप्रेटर थ्रू। बट अभी इसमें हमने प्रोग्राम को इक्लिप्स में लिखा है तो आपको डायरेक्टली आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर
कोई इसमें सिंटैक्टिकल एरर्स वगैरह है तो आपको इमिडिएटली वो दिखाई देगा। मतलब सपोज मैं यहाँ पे कुछ देना भूल गई, सपोज ये डॉट देना भूल गई, तो ये सिंटैक्टिकल एरर है जो कंपाइलर इमिडिएटली आपको बताता है कि यहाँ पे आपका कुछ गलत हुआ है, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग इन दिस स्टेटमेंट, जो आपको करेक्ट करना है। जब तक आप इसको करेक्ट नहीं करोगे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको करेक्ट करना होगा, उसके बाद ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए सब इसको पहले सेव कर लो, कंट्रोल एस करके फाइल सेव होनी चाहिए। जब फाइल सेव होगी तो यहाँ से स्टार चला जाएगा। कुछ भी आप चेंजेस करोगे प्रोग्राम में तो आपको यहाँ पे एक स्टार दिखाई देगा, दैट मीन्स योर फाइल इज अनसेव, यू हैव मेड चेंजेस इनटू इट। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, हर बार फाइल को सेव करना है उसके बाद ही रन करना है। जितनी भी बार एक स्मॉल कॉमा भी आपने ऐड किया, सो सपोज मैंने इसमें ये चेंज किया, इसके बाद आपको इमीडिएटली उसको कंपाइल करना होता है प्रोग्राम को। मतलब इमीडिएट मतलब अगर आप जितने भी चेंजेस कर रहे हो, छोटा भी चेंज किया आपने प्रोग्राम को, तो आपको कंपाइलेशन करना होता है। अगर आप कमांड लाइन पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो कमांड लाइन पे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करने के लिए हर बार आपको चेंजेस करने के बाद कंपाइल करना होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस चेंज आपका प्रोग्राम बाइट कोड कन्वर्ट करता है, जेवीएम बाइट कोड कन्वर्ट करता है, मतलब डॉट क्लास फाइल क्रिएट होती है। ठीक है, तो अगर चेंज नहीं किया आपने, कंपाइल नहीं किया, डॉट क्लास फाइल में भी वो चेंजेस आपको नहीं दिखाई देंगे। दैट इज द रीजन, अगर कुछ भी स्मॉल भी चेंज करते हो आप एंड प्रोग्राम अगर कमांड लाइन पे एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आपको पहले कंपाइल करना है फिर एग्जीक्यूट करना है। बट ये चीजें आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, इक्लिप्स में ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। जब आप रन करोगे, राइट क्लिक करो, रन एज जावा एप्लीकेशन करोगे, तो हर बार जावा एप्लीकेशन जब आप क्रिएट एग्जीक्यूट करते हो तो वो न्यू ये क्रिएट कर लेता है, डॉट क्लास फाइल चेंज करता रहता है। ठीक है, तो जो मैंने स्टेटमेंट इस डबल कोट्स में लिखा था वही स्टेटमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स दिस इज अ कंसोल, इसको कंसोल बोलते हैं। ठीक है, जो कंसोल पे आपको आउटपुट दिखाना है, जो भी स्टेटमेंट्स आपको दिखाने हैं, दैट शुड बी रिटन हियर इनटू द सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड। ये सिंटैक्स हो गया जावा प्रोग्राम का, एक फर्स्ट प्रोग्राम हमने कर लिया है। नाउ देयर आर फ्यू टर्मिनोलॉजीज। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजीज है कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, एक्सेस मॉडिफायर्स, और इसको एक्सेस स्पेसिफायर्स भी बोला जाता है, नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स, ऑपरेटर्स, डिसीजन स्टेटमेंट्स और कंट्रोल स्टेटमेंट्स, loop controls. So all these are we are going to see here in this module, that is a module 2. तो सबसे पहले कीवर्ड्स देखेंगे, जावा कीवर्ड्स। तो जावा कीवर्ड्स मतलब जो वर्ड्स रिजर्व्ड है, हर एक लैंग्वेज में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स रहते हैं जो रिजर्व्ड रहते हैं, जिसका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मीनिंग दिया जाता है। जैसे कि इस प्रोग्राम में हमने जो लिखा, जो भी आपको इस पर्पल कलर में दिख रहा है, दैट इज अ पब्लिक, क्लास, स्टैटिक, वॉइड, ऑल दीज आर कीवर्ड्स। ठीक है, इन सब का यूज जो है वो स्पेसिफिकली उसी के लिए करते हैं हम जिसके लिए उसको बनाया गया है। वो रिजर्व्ड वर्ड्स है, उसको हम यूज नहीं कर सकते प्रोग्रामिंग में। ठीक है, सिर्फ उसका जो फिक्स्ड मीनिंग है उसी के लिए आप उसको यूज कर सकते हो, उसका मीनिंग आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो जावा कीवर्ड्स आर केस सेंसिटिव, मतलब ये जो कीवर्ड्स है वो सारे लोअर केसेस में डिफाइन किए गए हैं। आप उसको अपर केस में लिखोगे तो उसका कोई यूज नहीं होगा। जैसे कि अगर ये पब्लिक वर्ड है, अगर इसको मैंने अपर केस में लिखा, सो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कीवर्ड। क्यों? क्योंकि पब्लिक जो वर्ड है, जो कीवर्ड है, जो रिजर्व वर्ड है, वो लोअर केस में डिफाइंड है। सो जावा में सारे कीवर्ड्स जो है वो लोअर केसेस में डिफाइंड है। सो इसमें फॉर एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट, असर्ट, बुलियन, ब्रेक, फाइनली, इम्प्लीमेंट्स, बहुत सारे इसमें हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जावा में ये जो लिखे हैं ये सिर्फ जावा में वर्क होते हैं,
थ्रोज, इंपोर्ट, इम्प्लीमेंट्स, पैकेज वगैरह, ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ जावा में है। बाकी के जो है वो आप सी प्लस प्लस में भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज जावा आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स मतलब क्या, कि हर एक पर्सन को, हर एक सिटी को, हर एक प्लेस को हम कुछ ना कुछ नाम देते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई दैट थिंग, आइडेंटिफाई दैट प्लेस, आइडेंटिफाई अ पर्सन बाय इट्स नेम। उसको हम नेम से आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। वैसे ही जब भी आपके प्रोग्राम में आपको कोई भी क्लास को नेम देना है, आपके मेथड को नेम देना है, कुछ वेरिएबल्स को नेम देना है, मतलब कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं उसको नेम देना है, तो उन सारे नेम के लिए वर्ड है आइडेंटिफायर। ठीक है, सारे जावा कंपोनेंट को हम नेम देते हैं, उस नेम को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। ठीक है, तो वो नेम क्या क्या होते हैं, किस किस को दे सकते हैं हम, क्लासेस को दे सकते हैं, वेरिएबल्स को दे सकते हैं, मेथड्स को दे सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको जब हम नेम देते हैं उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं, जिसके थ्रू आप उस पर्टिकुलर क्लास को आइडेंटिफाई कर सकते हो, वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर सकते हो, मेथड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये जनरल है, जैसे कि कोई भी पर्सन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके नेम से, किसी प्लेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम उसके नेम से, वैसे ही जावा कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफायर्स डिफाइंड है। ठीक है, आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स है, जैसे कि मैंने अभी क्लास का बताया था, वैसे ही यहाँ पे ये सारे रूल्स जो है ये आइडेंटिफायर्स को लागू होते हैं। क्या रूल्स है, तो सबसे पहले आपके सारे आइडेंटिफायर्स के नेम्स, क्लास का हो, मेथड का हो, वेरिएबल का हो, लेटर के साथ स्टार्ट होना चाहिए, कैपिटल टू स्मॉल कोई भी लेटर हो इसके साथ ही स्टार्ट होना चाहिए, या फिर करेंसी कैरेक्टर के साथ स्टार्ट होना चाहिए, या फिर अंडरस्कोर के साथ। करेंसी कैरेक्टर दैट इज डॉलर, और अंडरस्कोर के अलावा आप कौन सा भी दूसरा नेम मतलब कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्लास नेम हेलो वर्ल्ड है, इसको हम अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर करेंसी कैरेक्टर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, बट हम 1 2 3 4 5 नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, या फिर किसी ब्रैकेट्स वगैरह से स्टार्ट नहीं कर सकते, कोई भी दूसरे स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी हो, क्लास नेम हो, मेथड नेम हो, या वेरिएबल नेम हो, हमेशा जो नेम्स है वो सारे लेटर के साथ, या फिर करेंसी कैरेक्टर के साथ, या फिर अंडरस्कोर के साथ ही स्टार्ट होने चाहिए। नेक्स्ट है फर्स्ट कैरेक्टर। फर्स्ट कैरेक्टर इन तीनों में से कुछ भी हो, उसके बाद आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। किसका कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कैरेक्टर्स का, डिजिट्स का, या अंडरस्कोर का, किसी का भी बना सकते हो। पूरे प्रोग्रामिंग में सिर्फ दो ही स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड है, दैट इज दिस डॉलर साइन एंड अंडरस्कोर। इसके अलावा दूसरे कोई भी डॉट, ब्रैकेट, एम्परसेंड वगैरह, हैश वगैरह आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ दो ही आप स्पेशल कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो। देन थर्ड वन इज अ कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। ठीक है, कीवर्ड्स जो है उसका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है, दैट इज वाई हम कीवर्ड को वेरिएबल नेम या मेथड नेम या क्लास नेम के लिए यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड हम कभी यूज नहीं कर सकते एज आइडेंटिफायर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव एंड यूनिक। आपके प्रोग्राम में जितने भी आप आइडेंटिफायर्स लोगे, मतलब जितने भी आप वेरिएबल्स डिफाइन करोगे, मेथड्स डिफाइन करोगे, उनके नेम्स जो है वो यूनिक होने चाहिए, सो दैट कॉन्फ्लिक्ट ना हो। एंड डुप्लीकेट मेथड के नेम्स वैसे भी अलाउड नहीं है, तो सेम मेथड नेम्स हम दे सकते हैं बट इन अ डिफरेंट सिनारियो। बट यहाँ पे अलग अलग नेम आपको देने होते हैं, जिसकी वजह से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकोगे यूनिकली। वेरिएबल्स को, मेथड्स को, क्लासेस को, सबको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए मीनिंगफुल नेम देना जरूरी है आइडेंटिफायर को। जैसे कि आप अगर एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, आपके बाद दूसरा कोई आके डेवलप करने वाला है, तो उसको भी समझ में आना चाहिए ये आपने किसके लिए लिया था। तो मीनिंगफुल भी होना चाहिए, केस सेंसिटिव होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल आइडेंटिफायर्स के हम डायरेक्टली वेरिएबल्स के टाइम देखेंगे। Okay, so we have completed Java keywords and Java identifiers. Okay, so for today we will end our session here itself. We will continue with the Java data types, variables in the next session.
अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ लो। अगर आपने इंस्टॉलेशन नहीं किया है तो इंस्टॉलेशन कर लो, प्रोग्राम कर लो, स्टोर कर लो, ठीक है, प्रोग्राम का सेटअप कर लो। अभी ये जो फाइल हुआ है क्रिएट, ठीक है, तो इसको मैं दिखाती हूँ। ये प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट हुआ है, आप इसको प्रॉपर्टीज में जाके चेक कर सकते हो। गो टू दिस प्रॉपर्टीज। इस प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको फोल्डर दिखाई देगा। ये आपका स्ट्रक्चर रहता है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। एसआरसी में आपके सारे सोर्स फाइल्स रहेंगे, जितने भी डॉट जावा फाइल्स आप लिखोगे वो सारे एसआरसी में रहेंगे, और जितने भी डॉट क्लास फाइल्स क्रिएट होंगे वो बिन फोल्डर में क्रिएट होंगे। सो अगर आप इसको ट्राई करोगे ओपन करके देखने के लिए तो वो आपको नहीं दिखेगा। इट इज अ बाइट कोड, एनकोडेड रहता है, इसको आपको कुछ समझ में नहीं आएगा अगर दिखेगा भी तो, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आपका बाइट कोड कन्वर्जन हुआ है, इसको आप ऐसे नहीं देख सकते कि दिस इज हाउ योर प्रोग्राम गेट्स स्टोर्ड। कहाँ पे हो रहा है स्टोर वो मैंने आपको दिखाया। आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में बिन करके फोल्डर रहेगा जिसमें डॉट क्लास फाइल क्रिएट होंगी। ये आपका बाइट कोड है, एंड इसमें एसआरसी फोल्डर है जिसमें आपका सारे सोर्स फाइल्स मतलब डॉट जावा फाइल्स रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। क्लास पाथ में एनवायरमेंट वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली सेट होते हैं। तो जब भी आप प्रोजेक्ट को मतलब इस एप्लीकेशन को मेन मेथड के इस सोर्स फाइल को एग्जीक्यूट करोगे, कंपाइलेशन का कमांड, इंटरप्रिटेशन का कमांड जो जावा सी एंड जावा देखा हमने, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, आपको डायरेक्टली आउटपुट दिखता है, ठीक है। अगर आप कमांड लाइन पे कर रहे हो तो आपको वो चीजें खुद से करनी होती है, ठीक है। ओके, थैंक यू श्वेता। सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन, that is on Thursday, with data types part. Thank you. You may leave. Ma'am, you may stop recording.